یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہ درود شریف رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، یہ سب کچھ ہم تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے۔ محترم ناظرین، درود پاک کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، جس کے پیر تحت الثری میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں غوطے لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطے لگاتا ہے اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، سوچئے کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو اماں حوا ان کے لیے حلال ہو گئی، تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو بتانا مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ناظرین، جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام یا باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل روشنی اور رحمت سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں اور یہ عمل انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دنیاوی اور اخروی کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔
नाज़रीन करम, वैसे तो दुरूद शरीफ जितना पढ़ा जाए उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ खास औकात बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि पांचों नमाजों के बाद, आजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वुजू करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने या कहने पर दुरूद पाक पढ़ना सबसे बेहतर माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त। अल्लामा मोहम्मद बिन अबी बकर बिन अल क़ैम रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद पाक पढ़ने के 40 फवाइद बयान फरमाए हैं, और झेल में हम इन फायदों को जानेंगे कि दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह के हुक्म पर अमल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से अल्लाह से मवाफ़क़त पैदा होती है। फरिश्तों के दुरूद शरीफ भेजने के अमल में भी ये बंदा शामिल हो जाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, और उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं। आजान के बाद की वसीले की दुआ के साथ या अलग करके दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत हासिल होती है। ये गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, बंदे की जरूरियात के लिए अल्लाह के कफील बन जाने का जरिया है, क़यामत के रोज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब का जरिया है, तंगदस्त आदमी के सदका करने के कायम मकाम बन जाता है, जरूरतों के पूरा होने का सबब है। दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की तरफ से रहमत की दुआ होती है। ये दुरूद भेजने वाले की पाकीज़गी और तहारत का जरिया है, मौत से पहले जन्नत की बशारत है, क़यामत की हौलनाकियों से बचने का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने वाले का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। इस तरह दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का जरिया बन जाता है। नाजरीन, भूली हुई चीज को याद दिलाने का जरिया बनता है। दुरूद शरीफ पढ़ना मजलिस के अच्छे होने का सबब है, और क़यामत में दुरूद शरीफ ना पढ़ने वाले के लिए हसरत और नदामत का जरिया है। दुरूद पढ़ने वाले के लिए मोहताजी और फकीरी से छुटकारा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर दुरूद पाक पढ़ने वाला बखील कहलाए जाने से महफूज हो जाता है। दुरूद शरीफ ना पढ़ने पर जो वईद आई है, उस वईद से निजात अता हो जाती है। दुरूद पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता पा लेता है, और ना पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता भटक जाता है। ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, अल्लाह की तारीफ और रसूलुल्लाह पर दुरूद ना हो, तो वो मजलिस मुताफन हो जाती है, और दुरूद शरीफ पढ़ने से इस ताफुन से निजात मिलती है। जिस काम की इब्तदा अल्लाह की तारीफ और दुरूद मोहम्मदी से हो, तो वो काम पाए तकमील तक जरूर पहुंचता है। पुले सिरात, बंदे के नूर जिसके जरिए से पुले सिरात से गुजरना आसान होता है, उसमें इजाफा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला दिल की सख्ती से महफूज रहता है। आसमानों और जमीन वालों में से उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत हसना नाजिल फरमाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की शख्सियत, उसके अमल, उसकी उम्र और उसके काम काज में बरकत आती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहती है। दुरूद शरीफ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बढ़ने का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से मोहब्बत का जरिया है। ये बंदे की हिदायत और दिल की जिंदगी का जरिया है। इसके जरिए बंदे का नाम और तस्करा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाता है। पुले सिरात से साबित कदमी और उससे तेजी से गुजरने का जरिया है। दुरूद पढ़ने वाला थोड़ा ही सही मगर रसूलुल्लाह का हक अदा करने और रसूलुल्लाह की वजह से जो एहसानात अल्लाह ने हम पर किए हैं, उन पर शुक्र की कोशिश करता है। इससे अल्लाह का जिक्र और शुक्र भी अदा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर जो एहसान अल्लाह ने हम पर किया, बंदे को इसका एहसास भी हो जाता है। बंदे का दुरूद पढ़ना दरअसल अपने रब से दुआ करना है कि ए अल्लाह, अपने हबीब व खलील की तारीफ और तौसीफ फरमा। नाजरीन, हजरत सैयदना अबू अल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में थे कि अचानक उनके सामने एक दरिंदा आ गया। उन्हें अपनी जान की फिक्र पड़ गई।
बस उन्होंने खौफ ज़दा होकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद व सलाम भेजना शुरू कर दिया, जिसकी बरकत से आपको उस दरिंदे से निजात मिली और आपकी जान बच गई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए हैं, मगर किसी मकाम पर यह इरशाद नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। नाजरीन, अल्लाह पाक के दुरूद भेजने से मुराद रहमत नाजिल फरमाना है, जबकि फरिश्तों और हमारे दुरूद भेजने का मतलब दुआए रहमत करना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ात पर दुरूद भेजना बहुत बड़ी सआदत है। दुरूद शरीफ में 3 फायदे हैं: 10 रहमतें, 10 गुनाहों की मुआफ़ी और 10 दराजात की बुलंदी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं और बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। फिक्र और परेशानियों से निजात मिलती है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात लाजिम हो जाती है। उसे अर्श के साए में जगह मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मे का है। उस दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचाया जाता है। जबकि एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शिफाअत करूंगा। नाजरीन, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। एक साइल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि मुझे कुछ दीजिए, मैं बहुत तंगदस्त हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास उस वक्त देने के लिए कोई चीज न थी। आपने 10 बार साइल की हथेली पर दुरूद पाक पढ़कर फरमाया कि हथेली बंद कर लो। साइल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो वो सोने की भरी पड़ी थी। नाजरीन, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को इबादत गाह न बनाओ और मुझ पर दुरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। नाज़रीन, सैयदना अली इब्न तालिब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकी मानों में बखील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दुरूद नहीं भेजा। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है वो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। नाजरीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह की रजा के लिए गुलाम आजाद करने से ज्यादा अफजल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की जीनत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजना है, लिहाजा मजालिस को दुरूद पाक से मुज़य्यन करो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत ज़ैद बिन वहब से फरमाया कि जब जुम्मे का दिन आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना तर्क ना करो। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि दुरूद पाक पढ़ना दुरूद पाक पढ़ने वाले को, उसकी औलाद को, उसकी औलाद की औलाद को रंग देता है। नाजरीन, इमाम कस्तलानी ने रिवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा कि अचानक रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा और उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा कि हजरत आप कौन हैं? तो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि मैं तुम्हारा नबी हूँ
और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। नाजरीन, इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सालेह शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा तो पूछा कि तेरे मरने के बाद तेरे साथ क्या मामला हुआ। उसने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमाकर मुझे जन्नत में भेज दिया। सालेह शख्स ने जब इसका सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे आमाल तोले तो मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दुरूद पाक भी शुमार किए गए तो 100 दुरूद मेरे गुनाहों से बढ़ गए, जबकि नेक अमल मेरे गुनाहों से कम थे। जो ही दुरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब खत्म कर दो। चूंकि इसके दुरूद पाक की तादाद बढ़ गई है, इसलिए इसे सीधा जन्नत में ले जाओ। भाई और बहनों, इमाम कस्तलानी अपनी किताब अल मवाहबुद्दीनिया में फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा और महर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20-20 मरतबा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। चुनाचे उन्होंने 20 मरतबा दुरूद पढ़ा और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हलाल हो गई। भाइयों और बहनों, आज के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इन हालात की दुरुस्तगी हमारे आमाल की दुनिया दुरुस्त करने पर मौकूफ है। चलो आज से ही अहद कर लें कि चलते फिरते दिन रात दुरूद शरीफ का विर्द करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अब चलते हैं उन वज़ाइफ की तरफ जो बहुत ही मुजर्रब है। जो बंदा इस दुरूद पाक को असर की नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह का और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महबूब बन जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा बंदा होगा जिसे न सिर्फ जमीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान वालों की आंख का भी वो तारा बन जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह मुआफ फरमाते हैं और उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं। नाजरीन, एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन कराम, ये है वो दुरूद शरीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसा तोहफा ना दूं जिसे मैंने खुद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना। तो अर्ज किया गया कि जरूर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर और अहले बैत पर हम किस तरह दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे सलाम पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करो, यानी जो दुरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं। नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और कदम कदम पर अल्लाह की मदद उसकी शामिल हाल रहती है, उसकी हर हाजत पूरी होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत उस पर वाजिब हो जाती है, उससे रिज्क की तंगी दूर कर दी जाती है, माल और असबाब में बरकत पैदा कर दी जाती है। इसके अलावा दुरूद पाक पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले का खात्मा ईमान पर होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक हम सबको मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।